संसार का अंत, शतावट का चरम, रण क्षेत्र में योद्धाओं, यीशु मसीहा आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? अंतिम समय के लिए तैयार हो जाओ। A special welcome to all Angel TV viewers who are watching this program. इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी एंजल टीवी के दर्शकों के लिए एक खास स्वागतम। The name of this program is called Prepare to Meet the End Times. इस कार्यक्रम का नाम है अंतिम समय के लिए तैयार। Its purpose is to make us aware and to prepare for the end time. इसका मकसद ये है कि आपको जागृत करे और अंतिम समय के लिए तैयारी करें। The topic of discussion is about godly boundaries. हमारी चर्चा का शीर्षक है कि हमारी परमेश्वरीय सीमा। In the previous sessions we talked about examples of boundaries. पिछले सत्रों में हमने सीमाओं के उदाहरण को देखा And we want to look in this theme. और उसी को हम आगे देखना चाहते हैं। The next example is time boundaries. अगला जो उदाहरण है समय सीमा। Taking time off from a person can be a way of regaining ownership over some out of control aspects of our lives. हमारे जीवन से समय निकालना वो व्यक्ति की उस स्वतंत्रता को वापस पाने की और जो नियंत्रण में नहीं है उन बातों को काबू करना है। Especially where boundaries need to be set. खास रीति से जहां सीमाओं को लगाना जरूरी है। Let's turn to the book of Ecclesiastes chapter 3 and read verses 5 and 6. हम सबोपदेश की पुस्तक 3 अध्याय 5 और 6 पद पढ़ेंगे। A time to cast away stones and a time to gather stones. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to gain and a time to lose. A time to keep and a time to throw away. पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है। In many occasions in our lives, we keep ourselves pretty busy. कई अवसर में हमारे जीवन को हम व्यस्त रखते हैं। We bring a routine into our life. And oftentimes this routine brings stresses into us. हमारे जीवन को लगातार के कार्य करने कार्य को ले आते हैं और ये लगातार के कार्य हमारे जीवन में तनाव ले आता है। When you feel you are being overwhelmed by this stress, जब आपको लगता है कि इस तनाव की वजह से आप बहुत ही उभर चुके हैं, it is time to put a time boundaries in your life. अब वो समय आ चुका, अपने समय के लिए आप सीमा लगाएं। Remove from yourself from the routine that you're doing. जो आप लगातार कार्य कर रहे हैं उसमें से आपको अलग करिए। Have a break. Have a holiday and spend time with God. एक अवकाश लीजिए और समय निकालिए कि परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने के लिए। We all need a refreshing from time to time. समय समय पर हमारे लिए ताजगी होना जरूरी है। The next example of boundary is emotional distance. अगला सीमा का उदाहरण हमारे भावनाओं की दूरी। It is a temporary boundary to give our heart the space it needs to be safe. और ये अस्थायी सीमा है जो हृदय के लिए देते हैं, जो अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए। It is never meant to be a permanent way of life. मगर ये जीवन का स्थिर एक जीवन शैली नहीं होना है। People who have been in an abusive relationship need to find a safe place to begin to chill out emotionally. जो व्यक्ति शारीरिक रीति से शोषित किया गया है उसके लिए एक स्थान जगह बदलना जरूरी है जिससे कि उसे एक ताजगी मिले। No one should continue to set themselves up for hurt and disappointment. कोई भी लगातार चोट खाने के लिए, निराश सहने के लिए अपने आप को रखने की जरूरत नहीं है। If anyone has been in an abusive relationship, अगर कोई भी जो शोषण वाले रिश्ते में हो, they should wait until it is safe. उन्हें इंतजार करना होगा जब तक वो सुरक्षित महसूस ना करें। And until real patterns of change have been demonstrated before they go back. वो वापस जाने से पहले उनकी बदलाव की कोई भी अगर निशानी ना दिखता है तो उन्हें इंतजार करना हो। Many people are too quick to trust someone in the name of forgiveness. बहुत सारे लोग बहुत ही जल्दी ही दूसरे पर भरोसा करने लग जाते हैं
क्षमा के नाम पर, and not make sure that the other person is producing fruits from God. वो निश्चय नहीं करते कि क्या दूसरा व्यक्ति परमेश्वर का फल ले आ रहा कि नहीं। In the Gospel of Luke, chapter 3, verse 8, it says, fruit in keeping with repentance. लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 8 पद कहता है, मन फिराव का फल ले आए। To continue to open oneself up emotionally to an abusive or addictive person अगर एक व्यक्ति भावनात्मक रीति से अपने शोषण करने वाले या गंदे आदतों के अधीन व्यक्ति के लिए खुले रहते हैं, without seeing the true change is foolish. अगर उनकी सच्ची बदलाव को ना देखें तो वो मूर्खता है। Forgive, but guard your heart until you see sustained changes. क्षमा करिए मगर अपनी हृदय की रक्षा करिए ताकि उनकी संपूर्ण बदलाव को आप देखने ना पाए। तो Another example of boundaries is the other people. सीमाओं की जो है अगली उदाहरण दूसरे लोग। Sometimes we need to depend on others to help us set and keep boundaries. कई बार हमें दूसरों पर निर्भर होना जरूरी होता है कि वो हमारे लिए सीमा को नियुक्त करें कि हम सुरक्षित महसूस करें। People who have come from years of abusive relationships, जो लोग कई सालों से शोषित वाली जीवन से आए हैं, especially like alcohol, gambling, drugs, burst of anger, infidelity, खास रीति से शराब या जुआ खेलना या नशा करना या जो है गुस्से में भड़कना या बेवफाई, need the ability to create new boundaries only through the support of a group. जरूरत है कि एक नई सीमा को बनाना वो तब ही होने पाता है एक झुंड के द्वारा। This support group will give them the strength to say no to abusive relationships. ये मददगार के झुंड ही उन्हें मदद करते हैं कि वो शोषण करने वाली इन बातों के लिए इनकार करने पाएं And have control for the first time in their lives after so many years of abuse. इतने सालों के शोषण के बाद पहली बार अपने जीवन में वो नियंत्रण को लाते हैं। There are two reasons why we need others to help with our boundaries. दो वजह है क्योंकि हमारे दूसरे लोग हमारे सीमा लगाने के लिए मदद करने की। First, our most basic need in life is for relationship. सबसे प्रथम हमारे जीवन की महत्वपूर्ण जरूरत यह है कि एक रिश्ता। A person will suffer much to have a relationship and put up with abuse. एक व्यक्ति बड़ा प्रयास करता है एक रिश्ता बनाने के लिए और उस शोषण को सहने के लिए, Because they fear their partners will leave them and they will be alone if they stand up to them. और वो डरते हैं कि अगर उसका विरोध करें तो उनके सहभागी छोड़ के चला जाएगा और वो अकेले हो जाएंगे। Fear of being alone keeps many in hurtful patterns for years. अकेले होने के डर वो कई सालों तक आपके जीवन में एक अलग अलग गलत बातों के लिए द्वार खोलता है। They are afraid that if they set boundaries, they will not have any love in their life. उन्हें डर है कि अगर हम सीमाओं को लगाएंगे तो उनके लिए कभी कोई प्रेम मिलेगा ही नहीं। When they open up themselves to support from others, जब वो दूसरों की मदद के लिए अपने आप को खोलते हैं, they find that the abusive person is not the only source of love in the world. तब वो पता करते हैं उन्हें शोषण करने वाला ही उनके लिए एक प्रेम का स्रोत नहीं है। They can find strength through the support of other people to help them set limits. दूसरे लोगों की मदद के द्वारा वो ताकत पाते हैं कि अपने जीवन के लिए सीमा को लगाएं। They begin to understand that they are no longer alone. वो समझने लग जाते हैं कि अभी वो अकेले नहीं हैं। The second reason is because we need new input and teaching in our lives. दूसरा वजह यह है कि हमारे लिए नई शिक्षा जरूरत है और नई बात हमारे जीवन में लगाना जरूरी है। Many people have been taught by their families that boundaries are mean and selfish. कई बार परिवारों में से उन्होंने ऐसे सीखा होगा सीमा लगाने की मतलब आप स्वार्थ व्यक्ति हैं। Other people can help those in need to stand against these messages and the guilt involved in change. जो लोगों के पास जरूरत है तो वो इस संदेश के विरोध कर सकते हैं, मगर पछतावा यह है कि उनके लिए जरूरी बदलाव जरूरत है। The next example of boundaries is consequences. दूसरा सीमा की उदाहरण परिणाम। Trespassing on other people's property carries consequences. दूसरों की संपत्ति में घुसपैठिया करना वो उसका परिणाम ले आता है। It carries a threat of prosecution if someone steps over the boundaries. अगर वो सीमा को पार करके को वो बात जाता है उसके ऊपर वो दंड को ले आ सकता है। The Bible teaches this principle many times, saying that if we walk one way, this will happen
And if we walk the other way, something else will happen. बाइबल इस विषय में बार बार हमें शिक्षा देता है, अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो इस प्रकार के कार्य होगा, या अगर हम उस रास्ते से जाएंगे उस प्रकार के कार्य होंगे। We need to back up our boundaries with consequences. हमें अपने सीमाओं को हमारे परिणामों के अनुसार बनाना जरूरी है। Many married couples could have saved their marriage if बहुत सारे विवाहित दंपति रक्षा कर सकते थे अगर उन्होंने only they were able to tell their spouse these examples. अगर वो इन उदाहरणों को अपने दंपतियों से बता पा सकते तो। If you don't stop drinking, अगर तुम शराब पीना ना रोकोगे, if you don't stop coming at home at midnight, अगर आधी रात में घर आना रुकोगे नहीं तो, if you don't stop hitting me, अगर तुम मेरा मारना नहीं रोकोगे, if you don't stop yelling at me, मेरे पर चिल्लाना अगर नहीं रोकोगे, I will leave you until you get some treatment. मैं तुम्हें छोड़ दूंगी जब तक तुम अपने लिए इलाज ना पाओ। Let us look in the Bible for an example of consequence. परिणामों का एक उदाहरण बाइबल से हम देखने पाए। Let us turn to the book of 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. हम दूसरे थिस्सलुनीके की पत्री 3 अध्याय 10 पद को खोलें। For even when we were with you, we commanded you this, if anyone will not work, neither shall he eat. क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। God does not like irresponsible behavior. परमेश्वर गैर जिम्मेदार व्यवहार को पसंद नहीं करते हैं। If a person is able, then they should work to be able to feed themselves. अगर एक व्यक्ति सक्षम है तो उसे नौकरी करना, काम करना जरूरी है ताकि अपने बच्चों को खिला सके। Consequence let people know the seriousness of trespass परिणाम ही उस व्यक्ति को घुसपैठिए का गंभीरता बताता है, and the seriousness of our respect for others. वो गंभीरता एक दूसरे के प्रति आदर के विषय में बताता है। It teaches us that our commitment to living according to godly values is something we hold dear. वो हमें सिखाता कि हम परमेश्वरीय मूल्य के अनुसार हमारे लिए जीवन व्यतीत करना जरूरी है। And will fight to protect and guard. हम लड़ेंगे कि उसकी रक्षा करें और सुरक्षित रखें। My dear brothers and sisters, there's always a consequence when we disobey the commands of God. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का हर वक्त परिणाम रहता है। Can God forgive our sins? Yes. क्या प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेंगे? हाँ। But that trespass of God's laws will bring consequences. मगर उस परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन परिणाम को जरूर ले आता है। And this is what God is trying to alarm us with. इसी बातों से हमें चेतावनी देना चाहते हैं प्रभु। When He describes the boundaries that He sets, जो सीमाओं ने नियुक्त किया उसकी विवरण देते हैं, and we follow those boundaries, जब हम उसकी अनुसरण करते हैं, it brings peace and security into our lives. हमारे जीवन में शांति और सुरक्षितता लेता है। When we go outside those boundaries, जब हम उस सीमा से बाहर जाते हैं, there will be confusion and hurt. और वहां पर असमंजस होगा और चोट खाएंगे। The next item we want to discuss is what is within my boundaries. अगला जो हमें चर्चा ये करना है कि मेरी सीमाओं के अंदर क्या क्या है। I want to look at the story of the Good Samaritan. मैं एक अच्छे सामरी की उस दृष्टांत के ऊपर ध्यान लगाना चाहता हूँ। We see that in the book of Luke chapter 10 and verse 30 to 37. हम इसे लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 30 से 37 पद में देखते हैं। This is a good illustration of when boundaries should be both observed and violated. और ये एक अच्छा उदाहरण है कि सीमाओं का पालन करने से और ना पालन करने से क्या होता है। A man traveling from Jerusalem to Jericho was mugged. जो व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर सफर कर रहा था उसका लूटा गया। The robbers stripped him and beat him, leaving him half dead. चोरों ने उसके कपड़े उतार कर मार के उसे जो है अधमरा छोड़ दिया। A priest and a Levite passed by on the other side of the road and ignored the hurt man. एक याजक और लेवी सड़क के उस पार वो जा रहे थे, इसे देखकर उन्होंने इनकार कर दिया। A Samaritan took pity on him, bandaged his wounds and brought him to an inn and took care of him. सामरी उस पर तरस खाया, उसके पट्टी बांधकर उसे उस गृह में ले आकर उसकी देखरेख के लिए छोड़ दिया। The next day, the Samaritan gave the innkeeper some money and said, "Look after him, and when I return, I will reimburse you for any extra expenses you may have." अगले दिन सवेरे सामरी ने उस घर के रखवाले को और उसने पैसे दिए और कहा, इसकी देखरेख कर,
अगर इसकी कमी हो जाए, जब मैं वापस आऊंगा उसको मैं चुका दूंगा। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, just like what the Good Samaritan did, जिस रीति से वो अच्छी सामरी ने किया, these boundaries is within us. ये सीमाएं हमारे अंदर है। But the trouble is, the world teaches us a different lifestyle. मगर संसार में हमारे लिए अलग जीवन शैली सिखाया जाता है। The world teaches us not to care for those who are in need संसार सिखाता है जो जरूरतमंद हैं उनके ऊपर ध्यान ना लगाएं, and to care for yourself first. अपने बारे में पहले ध्यान देने के लिए सिखाता है। But God wants to change that boundaries, मगर परमेश्वर सीमा को बदलना चाहता है, because whatever you do unto others, you do unto God. क्योंकि आप जो कोई बात दूसरों के लिए करते हैं वो परमेश्वर के लिए करते हैं। And this is the example God has set in this story. और इस कहानी में यही उदाहरण प्रभु ने रखा है। I want to close this session with a prayer. So if you want to just bow your head and I will release a blessing upon you. इस सत्र को प्रार्थना के साथ खत्म करना चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो सरों को झुका सकते हैं। आपके लिए मैं आशीष को बोलना चाहता हूँ। Dear Heavenly Father, प्रिय स्वर्गीय पिता, I ask you to expand the understanding of everyone listening today, हर एक जो सुन रहे हैं उनकी समझ को बढ़ाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, that they take hold of all the examples that we have seen about boundaries, सीमाओं के विषय की जो भी हमने आज सीखा है उसे अपने जीवन में लागू कर सकें, that they may be able to apply it within their life. अपने ही जीवन में उसे लागू करने पाएं। I pray that you will release your grace from heaven प्रार्थना करता हूँ स्वर्ग से उनके ऊपर अपने अनुग्रह को ढेलें to help them obey your word कि आपके वचन की आज्ञाकारी होने के लिए मदद करें। and to live by the principles that is mentioned in the Bible. बाइबल में कही गई सिद्धांतों में जीवन व्यतीत करने के लिए In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ, Amen. आमीन। We look forward to seeing you again in the future. Until then, have a blessed time with the Lord. अगले बार फिर से मिलने की अपेक्षा में रहते हैं। तब तक प्रभु के साथ एक आशीषित जिंदगी व्यतीत करें।